اور سندھ میں رواں مالی سال سمیت گزشتہ 3 برسوں سے ٹیکس وصولی کرنے والے محکمے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو رواں سال کے 9 ماہ میں صرف 44% ٹیکس وصول کر سکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی دیکھیں، سندھ کے جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بری کارکردگی سامنے آئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود محکمہ خزانہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو، اس رپورٹ میں یہ واضح ہے کہ بورڈ آف ریونیو گزشتہ 3 سالوں میں کوئی 52 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، 52 ارب روپے کی کم وصولی ہوئی ہے۔ رواں سال کے جو 9 ماہ ہیں اس میں بھی بورڈ آف ریونیو کو جو ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہ 2723 ملین روپے کا ٹارگیٹ تھا، جس کے برعکس صرف 1220 ملین وصولی ہوئی ہے، یعنی یہ بنتی ہے 44%، یعنی 50% سے بھی کم ٹارگیٹ ہے محکمہ ریونیو کا۔ اسی طرح ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دونوں جو وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں صوبہ سندھ میں۔ بورڈ آف ریونیو زراعت ہو، چاہے لینڈ ریونیو ہو، چاہے زمینوں کی ٹرانسفر ہو، اسٹیپ ڈیوٹی ہو، ان تمام ٹیکسز کا ہدف جو ہے 50% سے کم وصولی ہے۔ زراعت کے انکم ٹیکس پر 2723 ملین روپے کے برعکس 1220 ملین روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ رجسٹریشن ٹیکس کا 909 ملین روپے کا ٹارگیٹ تھا، اس کے برعکس صرف 244 روپے کی جو ہے وصولی ہوئی ہے، جو ٹوٹل 25% بھی نہیں بنتی ہے۔ لینڈ ریونیو میں 914 روپے، یہ میں صرف رواں سال کے بتا رہا ہوں، 914 ملین روپے وصول کرنے تھے، وہاں ریکوری صرف جو ہے 208 ملین روپے ہوئے، یعنی 22% ہے۔ اسٹیمپ ڈیوٹی کے مد میں 36,787 ملین روپے کے برعکس 12,229 ملین روپے وصول ہوئے ہیں، جو صرف 33% بنتا ہے۔ تو یہ بری صورتحال ہے سندھ حکومت کا ٹیکس وصولی پہ، جس پہ آج جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں وزیر اعلیٰ سندھ نے خود برہمی کا اظہار کیا ہے، تمام محکموں کو کہا ہے کہ اپنا ٹیکس وصولی کا ہدف جو ہے وہ پورا کریں۔ ظاہر ہے کہ اب جون میں بجٹ کی تیاریاں ہوں گی، تو یہ بڑا برا ہوگا سندھ حکومت کے لیے اگر ٹیکس وصولی پورا نہیں ہو رہا ہے تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز جمالی، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا نہ ہونے پر محکمہ ایکسائز پر برہمی کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مناد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزیر ایکسائز سر شرجیل انعام میمن، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی گزشتہ 3 مالی برسوں میں ریونیو وصولیوں کا جائزہ لیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گزشتہ 3 سالوں میں 3,35,200 ملین روپے کی برعکس 2,87,604 ملین روپے کی وصولیاں کی۔ اس طرح وصولیوں میں 47,596 ملین روپے کا شارٹ فال ہے۔ سال 2023-24 میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بجٹ ٹارگٹ 55,218 ملین روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شرجیل میمن کو ذاتی طور پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ریکوریوں پر توجہ دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریکوری کا ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے افسر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سندھ حکومت نے کابینہ میں توسیع کے بعد افسر شاہی کی مزید اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کر لیا۔ 10 سے زائد محکموں کے سیکریٹریز کے اگلے ہفتے تقرر تبادلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مناد علی شاہ نے وزراء سے افسران کے ناموں کا پرپوزل مانگ لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیو سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے 10 سے زائد محکموں کے سیکریٹریز کے تقرر تبادلے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے نئے وزراء نے جو ہے من پسند مرضی کے افسران تعینات کرنے کا پروپوزل بھی وزیر اعظم نے مانگ لیا ہے۔ اگلے ہفتے افسران کی باضابطہ طور پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی جائے گی۔ اکھاڑ پچھاڑ میں جن افسران کے نام سر فہرست ہیں ان میں سیکریٹری محکمہ برائے جامعات و بورڈ نور احمد سمو، سیکریٹری محکمہ برائے زکوٰۃ، عشر، اوقاف و مذہبی امور منور علی میسر سے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیکریٹری محکمہ برائے انڈسٹریز و کامرس محمد یاسین شیر بلوچ اور سیکریٹری محکمہ برائے ورکس اینڈ سروسز سید اعجاز علی شاہ کا بھی تبادلے کا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن محمد علی کوسو اور سیکریٹری محکمہ برائے ترقی خواتین و نسواں تمیز الدین کھوڑو کے نام بھی اکھاڑ پچھاڑ ہونے والے افسران کے ناموں میں سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ سیکریٹری محکمہ برائے ماحولیات، موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی نبیلہ عمر اور سیکریٹری محکمہ برائے سماجی بہبود ساجد جمال ابرو کے بھی نام تقرر تبادلے والے افسران کے ناموں میں
ये शामिल है। इसके अलावा सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली परवेज अहमद सीहर और सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत व अफरादी हाफिज अब्बासी के भी नाम है ना अफसरान के उखाड़ पछाड़ की फहरिस्त है। इन अफसरान के तकर्र तबादलों के नाम जो वज़ीर सिंध में उजरा से मांगे हैं, जैसे उजरा इन अफसरान के नामों की फहरिस्त अरसाल करेंगे, जिसके बाद इन अफसरान के बाद ज़ाब्ता तौर पर तकर्र तबादले करी जाएंगे। इसके अलावा ऐसे अफसरान भी शामिल है जो तकरीर के मुंतज़र हैं, उनकी भी अहम उम्र तैनातियाँ मुतलक ठीक है हैं। आज़ाद जी। नोरियो, अपडेट करके बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कराची बारादरी स्टॉप के करीब चोर ने दुकान का सफाया कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज नाज़माबाद में जो है चोरी की वारदात हुई नॉर्थ कराची में हुई है, जहां बारादरी में स्टॉप के करीब चोर ने दुकान का सफाया कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में चोर को दुकान का शटर काटते हुए, खोलते हुए और वारदात करते हुए देखा जा सकता है। चोर ताले और ग्रिल काटकर दुकान में दाखिल हुआ। मुलजिम कैश और दीगर अशिया खून के साथ लूट कर जो है फरार हो गया। फुटेज में चोर का चेहरा वाज़ेह है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज नहीं हुआ है। जो दुकानदार है उसकी जानिब से इस वाक़े की रिपोर्ट जो है दर्ज से करवाई है, इसे थाने में दरख्वास्त जमा करवाई है, लेकिन FIR अभी तक नहीं कटवाई। ताहम चोर की तलाश का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कराची में लूट मार करके फरार होते हुए डाकुओं की फायरिंग। पास से गुजरते रिक्शे पर गोली लगने से रिक्शे का शीशा टूट गया। शीशा टूटने से रिक्शे में बैठी 13 साला बच्ची जख्मी हो गई। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद नॉर्थ कराची में लूटमार करके फरार होते डाकुओं ने फायरिंग की, जबकि पास से गुजरते रिक्शे पर गोली लगने से रिक्शे का शीशा टूट गया। शीशा टूटने से रिक्शे में बैठी 13 साल बच्ची जख्मी हो गई, जबकि शीशा बच्ची के चेहरे पर लगा, होंठ और थोड़ी पर भी जख्म आया। जबकि रिक्शे वाला बच्ची का वालिद है, बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंच के तहकीकात शुरू कर दी, जबकि जख्मी बच्ची को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। पुलिस जो है वो ये पता लगा रही है कि कौन से शहरी के साथ जो है वो डकैती की वारदात हुई है। ताहम अब तक बिलाल कॉलोनी थाने में कोई भी शहरी डकैती की इत्तला है वो लेकर मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिला साउथ में पुलिस के लिए छलावा बने मुलजिम की एक और वारदात। पुलिस जैसे जूते और पैंट जेबतन किए मुलजिम ने स्टोर लूट लिया। सीसीटीवी से जो फुटेज है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। अपडेट करते चले, जिला साउथ में पुलिस के लिए छलावा बने मुलजिम की एक और वारदात सामने आ गई है। पुलिस जैसे जूते और पैंट जेबतन किए मुलजिम ने स्टोर में लूट मार की है और इस लूट मार की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। जिला साउथ में पुलिस के लिए ये छलावा बना मुलजिम एक और वारदात कर चुका है और पुलिस जैसे इसने जूते पहन रखे हैं और पैंट जो है वो जेबतन किए हैं और स्टोर को लूट लिया है और इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल हुई है। वारदात चंद रोज़ कबल आरामबाग के इलाके में की गई है और मुलजिम को दुकान के अंदर दाखिल होते भी देखा जा सकता है। लियारी, नयाबाद और दरियाबाद UC 11 में सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, लाइनें खराब होने से गटर उबल पड़े। शहरी अजियत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइए ज़रा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके नयाबाद, दरियाबाद और लियाकत कॉलोनी जो कि UC 11 और UC 9 में जो है शामिल है। यहाँ पर जो है वो सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इस पूरे मुल्क को ये कराची शहर है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं। पुरानी जो नई बल्दियाती हुकूमत आ गई, लेकिन इस जो है नई बल्दियाती हुकूमत में भी जो है कोई भी ना यहाँ के इलाके के चेयरमैन ना काउंसलर यहाँ पर आके इस इलाके के शहरियों के मसाइल पूछते हैं। आप मेरे कैमरामैन हैदर जो है अली आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त आप इस सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितनी बुरी है सड़क हुई हुई है। गटरों की जो लाइन है वो चौक है, जिसकी वजह से गटर जो है उबल पड़े हैं और यहाँ पर गंदगी और गलाजत का निज़ाम है, जिसकी वजह से जो है ताफून फैल रहा है और बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। साथ ही में जो है यहाँ पर
मस्जिद भी है और स्कूल भी है, जिसमें मस्जिद में जो है नमाजियों को जो है जाने में और आने में परेशानी का सामना है। और इसी के साथ अगर बात की जाए स्कूल के बच्चों की, तो स्कूल के बच्चे भी जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, इस इलाके में रह रहे कब से ये सूरत हाल है, कब से लाइनें नहीं डली, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। वो टाइम जब भी बारिश होती है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और ये गटर का पानी भी ऊपर आ जाता है, जिससे ये कि नमाजी जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं। ये काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ के जो मेन रोड है ना, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती है। तो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए, आप लोगों ने वोट दिया होगा, तो लोग यहाँ पर वोट मांगने आए तो उन्होंने ये सूरत हाल नहीं देखी और आप लोगों ने उनको नहीं कहा कि हमारे इस इलाके को काम कराया जाए, नई लाइनें डलवाई जाए, ताकि ये जो अजियत है इससे आपका छुटकारा हासिल हो? वोट का तो ये है कि ये लोग सिर्फ वोट के टाइम पे ये बोल रहे होते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। देखिए, हमारे साथ शहरी मौजूद है जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो इलाके की सूरत हाल इंतहाई जो है वो ख़राब है। यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनको जो है शदीद परेशानी का सामना जो है वो होता है। कुछ रोज़ कबल जो है यहाँ पर एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उनकी बाइक का जो टायर है वो गड्ढे में लगा, उसके बाद वो बाइक जो है वो गिरी, जिसके नतीजे में वो हादसे का शिकार हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद, हमें अपडेट कर रहे थे। पैदावारी लागत बढ़ने के असरात, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात का डेटा जारी। मार्च 24 में टेक्सटाइल की बरामदात में 7.70% कमी रिकॉर्ड की गई। मार्च 24 में टेक्सटाइल की बरामदात 1.30 करोड़ डॉलर रह गई। अपडेट करते चलें, पैदावारी लागत बढ़ने के असरात हैं और टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात का डेटा जारी कर दिया गया है और इस डेटा में बताया गया है कि मार्च 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात में 7.70% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मार्च 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात 1.30 करोड़ डॉलर रह गई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा। की जाने से कंसर्न शो किया जा रहा था कि पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से जो बड़े ऑर्डर जो हाथ से निकल रहे हैं, तो ये डाटा सामने आया है कि फरवरी 24 के मुकाबले मार्च 24 में टेक्सटाइल की बरामदात में तकरीबन 8% की कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद तौर पर एक माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 10 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी हुई है। फरवरी 24 के 1.40 करोड़ डॉलर के मुकाबले मार्च 24 में टेक्सटाइल की बरामदात 1.30 करोड़ डॉलर रह गई है। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में टेक्सटाइल की बरामदात में 3.3% का इजाफा देखा गया है। टेक्सटाइल की बरामदात मार्च 23 से जो देखा जाए 4.10 करोड़ डॉलर से जो यहाँ पे बढ़ के उसमें 1.30 करोड़ डॉलर तक जो रही है और यहाँ पे रवा माली साल 9 माह में देखा जाए टेक्सटाइल की बरामदात 0.3% कमी से 12.44 करोड़ डॉलर रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में 12.47 करोड़ डॉलर थी। और एफटीमा का कहना है कि बिजली और गैस की कीमत बढ़ने पर रीजन और मॉल का मुकाबला मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरामदात बढ़ानी है तो पैदावारी लागत रीजन और मॉल के बराबर करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने की खबरें, शहरियों का मिला जुला रद्द अमल आया है सामने। कहते हैं हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने से यकसा कीमत का खात्मा हो जाएगा। हर पेट्रोलियम कंपनी अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर करेगी। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने से कीमत फौरी कम हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि खबरें गर्दिश में हैं कि अब ओगरा का किरदार जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और हुकूमत जो है वो डी रेगुलेट कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को। अब ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या पेट्रोल पंप्स हैं वो अपनी कीमतों का खुद तयन करेंगे। बड़ा मुश्किल सा ये एक सवाल है, लेकिन हम ज़रा आवाम से जानते हैं क्या ये इनकी समझ में आता है कि हर जगह का हर पेट्रोल पंप या हर पेट्रोल जो कंपनीज़ हैं वो अपना पेट्रोल की कीमतों का तयन खुद करें। तो ज़रा बताइए, अगर हुकूमत का किरदार ख़त्म हो जाए या ओगरा का किरदार ख़त्म हो जाए और पेट्रोलियम कंपनी खुद पेट्रोल की कीमतों का तयन करे तो कैसा समझते हैं, कैसा किरदार होगा? एक और माफिया खड़ा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ओगरा का किरदार और हुकूमत में ये रेगुलेटरी होनी चाहिए कि वो तयन करे? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या समझते हैं ये दाम अभी हुकूमत में बड़ी तनकीद होती है कि जब पैसे बढ़ते हैं तो आवाम बड़ा एहतजाज करती है, लेकिन फिर आप लोग कैसा? एहतजाज नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि फिर हम एहतजाज वगैरह नहीं कर सकेंगे, ये अपनी मन मर्जी करेंगे जो हो।
आप ज़रा बता सकते हैं कि अगर हुकूमत का ये किरदार ख़त्म हो जाए कि वो पेट्रोल की कीमतों का तयन करे और पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं वो खुद आप लोगों को या तो डिस्काउंट दे दे या रिलीफ दे दे या वो अपनी कीमतों का खुद तयन करे, पूरे मुल्क में एक जैसा फिर पेट्रोल की कीमत नहीं होगी, कैसा इकदाम होगा? अगर ये इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा इकदाम यही है। और नई हुकूमत आती है ये बोलते हैं हम जो है पेट्रोल नीचे आएगा, हर चीज़ में सस्ती होएगी। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है हर चीज़ फिर भी 10 रुपये 20-50 ऊपर ही हो जाती, कम नहीं हुई है। ये गरीब बट्टे की तरह जो आटा पिसता है ना गंदम, वैसे गरीब पिस रहा है। अच्छा, अब देखें इसमें मिला जुला रुझान हमें नज़र आ गया। एक साहब ने बोला कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो फिर हम अगर बढ़ती हैं तो हम एहतजाज भी नहीं कर सकेंगे, ना हमारा यह, क्योंकि फिर पेट्रोल मार्केटिंग कंपनीज के हाथ में होगा। जहां इन साहब से जब हमने शहरी से बात करी तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल जो है इनके हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत कोई चीज़ बढ़ाती है तो उसकी जब हुकूमत बदलती है तो कीमतों का रिलीफ इतनी आसानी से होता नहीं है। तो ये जब कंपटीशन बढ़ेगा, यानी कि जब 2-4 पेट्रोलियम कंपनीज आपस में मिलेंगी तो कोई ना कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए उसके अंदर तयन जो होगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि कराची के शहरियों को तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब कराची से जो पेट्रोल पेशावर जाएगा तो उसके अंदर जो उसकी लागत बढ़ेगी तो यकीनन उसकी कीमतों में फ़र्क होगा और पूरे मुल्क में जो पेट्रोलियम कीमतें हैं वो यकसा नहीं होंगी। उसमें यकीनन जो है एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क इस रेगुलेटरी इदारा अगर ख़त्म की जाएगी तो उसके बाद ये तयन ज़रूर नज़र आएगा फ़र्क। जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पीर से कराची में मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस का हल्फ लेने के 7 माह बाद कराची में पहली बार केसेस की समाअत करेंगे। मजीद इस पर बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो कराची का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पीर से कराची में मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस का हल्फ लेने के साथ 7 माह बाद जो है कराची में पहली बार केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पीर से जुमा तक 3 रुकनी बेंच की सरबराही भी करेंगे। कराची रजिस्ट्री की जानब से पूरे हफ्ते के लिए 48 मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी है। काज लिस्ट में 15 साल पुराना केस भी शामिल कर दिया गया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दरख्वास्त पर 15 बरस कबल अकरम नबी और दीगर के खिलाफ केस जो है वो जेर समाअत है, जबकि 14 बरस कबल दायर होने वाले 3 मुकदमात भी जो है वो उसकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस हफ्ते के रोज कराची बार समेत सिंध हाईकोर्ट बार, सिंध बार काउंसिल और दीगर वकला के वफद से भी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहजीब व सकाफत के अकास उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए साकुनान शहर कायद का 29वां आलमी मुशायरा आज होगा। आलमी मुशायरे की तैयारियां एक्सपो सेंटर में ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें तहजीब व सकाफत की अक्कासी और उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए सकनान शहर कायद का 29वां आलमी मुशायरा जो है वो आज होने जा रहा है। आलमी मुशायरा जो है वो एक्सपो सेंटर में सजेगा, जबकि आलमी मुशायरा आज जो है वो रात 8 बजे जो है वो एक्सपो सेंटर के मकाम पर सजेगा। आलमी मुशायरे में तकरीबन जो है वो 10,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत जो है वो मुतवक्के है और इस वक्त जो है वो यहाँ पे एक्सपो सेंटर में तैयारियाँ जो है वो काफ़ी उरूज पर हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुर्सियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं और जो है वो डेकोरेशन करने वाले अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे स्टेज वगैरह सजाए जाने का काम भी जो है वो जारी है। इसके अलावा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो आलमी मुशायरे को पुरजोश और जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो तैयारियां काफ़ी उरूज पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा आलमी मुशायरे में जो है वो मारूफ शोरा जो है वो शिरकत करेंगे और अपने कलाम जो है वो शिरकत करने वाले अफराद के लिए जो है वो अपने आशार जो है वो पेश किए जाएंगे।